Dr. B.N. Gangadhar, NMC Chairman, Dr. G.S. Secretary Ayush, Government of Himachal Pradesh, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए आरोग्य सबसे महत्वपूर्ण आधार है. And thought leaders from across the globe, besides connecting suppliers with buyers. व्यापारियों और शिक्षाविदों के अतिरिक्त यह नवोदित विद्वानों, शोधकर्ताओं, अंतिम उपयोगकर्ताओं. We will also be invoking blessings of the God of medicine, Dhanvantri Bhagwan, for seeking his blessings. And now, Chairman, to welcome Padma Shri Guruji Dr. H.R. Nagendra ji. Chairman, sir, to welcome Guruji. Chairman, sir, again to welcome Dr. Ashish Gautam, founder Divya Prem Seva Mission, Haridwar. Floral welcome for Dr. G.S. Tomar, founder Vishwa Ayurveda. अब मैं Expo Mart Limited. Vision of Dr. Nagendra to start this Ayurveda Expo, and the very first Ayurveda Expo was conceptualized and started under his dynamic leadership. In fact, it was his motto that we should have this kind of a large congregation of all stakeholders on the Ayurveda, basically Ayurveda, Yoga and Naturopathy, to start this event. Initially, the name of this event was combined World Ayurveda, Yoga and Naturopathy. So we started with that vision. Thank you very much, Doctor. You are here today with us again. Shri Sandeep Karam ji, Secretary Ayush, Himachal Pradesh. Dr. Ashish Bhaiya ji, founder Divya Prem Seva Mission. I would also like to make a special mention for Ashish Bhaiya. Ashish Bhaiya works for thousands and lakhs of the people who are affected with the leprosy. जो कुष्ठ रोग से पीड़ित लोग हैं, आप उन लोगों के बीच में वर्षों से काम कर रहे हैं, उनके बीच में रह करके उनको ठीक करने का, उनकी देखभाल करने का और उनके बच्चों को आगे परवरिश करने का काम कर रहे हैं। गंगा घाट पर ये वर्षों से ऐसा काम कर रहे हैं। मैं खास तौर पर उसके लिए आपको नमन करता हूँ और मेरे वास्तव में ये पर्सनल तौर पर स्पिरिचुअल गुरु भी है। धन्यवाद आशीष भैया, आप आज यहाँ हमारे बीच में पधारे। We also have with us Dr. B.N. Gangadhar ji, Head National Medical Commission. We have with us Dr. R.S. Chauhan ji, Founder IMS Ayush. Dr. G.S. Tomar ji, Member National Executive Council, Arogya Bharati. Dr. Nitin Agarwal ji, President Ayurveda Expo, my colleague, the one who takes the pain to organize this event throughout the year, and he worked very hard for this event. In fact, this event has reached to this level only because of his hard work. My colleague, Mr. R.K. Verma from INITIATE, who always support in all our events. C.P. Sharma ji, distinguished guests, my
CEO Shri Sudeep Sarkar, honorable speakers, esteemed practitioners and CEOs of the companies and the valued attendees. Thank you very much for joining us today. In fact, we have a lot to know from stalwart like Dr. Saab, Rajesh ji, Ashish Bhaiya today from this forum. So I would like to keep my speech in a few words. I find myself fortunate to welcome you all to the 6th edition of iRogue Expo 24 at India Expo Center in March. iRogue Expo is a premier event that brings together practitioners, enthusiasts, and businesses from the field of Ayush and wellness. This annual expo serves as a significant platform for showcasing the latest advancements, research, and products related to these ancient Indian sciences, attracting participants from around the globe. We are gathered here at the India Expo Center in March for the consortium of the Ayush industry, where ancient knowledge meets modern innovation. Over the next 3 years, we have the unique opportunity to explore the profound wisdom of traditional health sciences that we have served humanity and for centuries. iRogue Expo 2024 is a celebration of holistic health and well-being. Our mission is to create a platform for business development, knowledge sharing, collaboration, and increased public awareness for the potential that these traditional practices hold for promoting a balanced and healthy lifestyle. The world is witnessing a growing recognition of the value of nature and holistic approaches to health, and it is our responsibility to nurture this interest and guide it towards a sustainable future. Honorable Prime Minister stressed that the Ayurveda is no more an option, but forms a fundamental pillar of the country's national health policy and health interventions. Also, Honorable Prime Minister emphasized the holistic nature of yoga and said that it takes care of the physical health as well as mental health. Under the banner of the iRogue Expo, we are making efforts to take forward the vision of Honorable Prime Minister. Today, Ayurveda's massive popularity extends beyond the east to the west and the global landscape at large. It is expanding rapidly from Asia to Africa, North America to Europe, gaining global recognition for its holistic approach to health. The growing awareness among the masses about the potential side effects of the conventional treatments has compelled many to switch to natural, safer, and holistic alternatives like Ayurveda. From managing diabetes to addressing cancer, from elevating depression to treating cardio disease, people are increasingly relying on Ayurveda for a variety of physical, mental, and genetic issues. The iRogue Expo has established itself as a significant event dedicated to promoting the ancient healing practice of Ayush. It brings together practitioners, enthusiasts, researchers, and stakeholders from around the world to showcase the benefits of wellness. This annual expo serves as a significant platform for showcasing the latest advancements, research, and products related to these ancient Indian sciences, attracting participants from around the globe. Friends, we are gathered here at the India Expo Center in March in Greater Noida for the consortium of the Ayush industry, where all these practices will be part of our 4 days activities. The मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम को शोभायमान कर रहे हैं हमारे गुरुदेव आचार्य एच.आर. नागेंद्र जी, एक ऐसे मनीषी जो वर्तमान परिदृश्य में योग को विश्व के धरातल पर प्रतिष्ठापित करने में भूमिका निर्वाह कर रहे हैं। मैं उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और मुझे आप सौभाग्य मिला कि मैं NAC की तरफ से विजिटर होकर के आपके विश्वविद्यालय में गया, तो मेरे वर्तमान परिदृश्य में ग्लोबल पर्सपेक्टिव में आयुर्वेद योग को प्रतिष्ठापित करने के लिए उनके किए गए प्रयासों को व्यक्तिगत रूप से देखा, तो मैं आपको नमन करता हूं, आपकी जिजीविषा को प्रणाम करता हूं।
हमारे साथ हम तो उस वसुधैव कुटुंबकम के ध्वजवाहक हैं जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। मुझे सौभाग्य मिला है कि महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय में वर्तमान में मैं विजिटिंग प्रोफेसर का काम भी देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आयुर्वेद से किस प्रकार से पीड़ित मानवता की सेवा की जा सकती है। मित्रों, आज आयुर्वेद भारतवर्ष की चार दीवारी से निकलकर वैश्विक धरातल पर स्थापित हो रहा है। तो आज जरूरत है, we have to prove the efficacy of Ayurvedic drugs on current scientific parameters to convince the global community। वैश्विक परिदृश्य में उन्हीं की भाषा में हमको जवाब देना होगा। इसलिए कोरोना कालखंड में संपूर्ण विश्व ने आयुर्वेद की गुणवत्ता के ऊपर उसको स्वीकार किया, उसकी सराहना की, उसकी स्थापना हुई। अब हमारे राकेश कुमार जी ने आपके सामने कहा कि हमारी जीवन शैली, ब्राह्म मुहूर्त में उठना, उषा पान करना, नाक में अणुतेल का नशे डालना, इन सारी वैज्ञानिक चीजों को संपूर्ण विश्व ने स्वीकार किया। हमारी नमस्कार पद्धति को संपूर्ण विश्व ने स्वीकार किया। जिस आहार की हम बात करते हैं, आज मुझे प्रसन्नता होती है कि आज हमारे पास अमेरिका और यूएस से जो यूएस और यूके से मेल आते हैं, दे आर इंटरेस्टेड टू डू अबाउट द सात्विक आहार, राजस आहार, तामस आहार। केवल वेजिटेरियन डाइट के बारे में नहीं, सात्विक आहार के बारे में भी लोग बात करते हैं। तो तीन जो चीजें हमारे यहाँ हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, अगर इनका हम परिगणन करते हैं, इनका हम अनुपालन करते हैं, तो हम विश्व को एक नई दिशा दे सकते हैं। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आयुर्वेद के 4 अंग हैं। विषक द्रव्यानुपस्थाता रोगी पाचतुष्टयम। राकेश जी ने एक ही मंच पर इन चारों लोगों को स्थापित किया है। मैं देख रहा हूँ अपने सामने कि आयुर्वेद के विख्यात विद्वान, रिसर्चर्स, मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में विद्वान, और साथ साथ में हमारी औषधि निर्माणशालाओं के विभिन्न प्रतिनिधि आज एक मंच पर बैठ करके संपूर्ण विश्व के मंगल की कामना के लिए एकत्र हुए हैं। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि इस प्रकार के आयोजन से हम संपूर्ण विश्व को एक दिशा दे सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अधिक समय न लेते हुए सभी मंडप में बैठे हुए, सभागार में बैठे हुए सभी मनुष्यों को प्रणाम करता हूं और मंच में बैठे हुए सभी को नमन करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरि। डॉक्टर तोमर का हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं। हमें आयुर्वेद योग एक्सपो, डॉक्टर नितिन अग्रवाल जी, फेयर प्रेसिडेंट आयुर योग एक्सपो, श्री संदीप कदम जी, IAS, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आयुष गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल, डॉक्टर राजेश शर्मा जी, डिप्टी डायरेक्टर रजिस्ट्रार आयुष हिमाचल प्रदेश, सिंह जी, पद्मश्री गुरुजी डॉक्टर HR नागेंद्र जी, डॉक्टर आशीष गौतम जी, डॉक्टर RS चौहान जी, डॉक्टर JS तोमर जी, डॉक्टर राकेश कुमार, डॉक्टर गंगाधरन, डॉक्टर अग्रवाल और इस हॉल में उपस्थित सर्व सम्माननीय गण। First of all, I am feeling really blessed to be part of this particular event, आयुर योग एक्सपो। मुझे इस डिपार्टमेंट में आके करीब 7-8 महीने हुए हैं एंड जब से मैं इस विभाग में आया हूँ तब से आई हैव बीन कंटेम्पलेटिंग विद माय कलीग्स कि ऐसी कोई इवेंट देश में होनी चाहिए विद एब्सेंस ऑफ नॉलेज कि ऑलरेडी इस तरीके का एक इवेंट देश में किया जाता है। मुझे लगता है कि आयुर योग जैसी ये जो इवेंट है ये पूरे देश में इस आयुष विभाग के जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाके उनका आपस में इंटरेक्शन करने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। और मैंने सुबह मैं जल्दी आ गया था तो मैंने पूरे हॉल का भी एक राउंड किया, यहाँ काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट किया। तो मैं सभी आयोजकों को इस बात का बहुत आयोजकों का अभिनंदन करना चाहूँगा कि इस इवेंट का लुक बड़ा मॉडर्न है पर कंटेंट ट्रेडिशनल है।
एंड मुझे लगता है कि ये आज की डेट में किसी भी साइंस को, जो मैं आयुष को हर एक तरीके से मानता हूँ कि वो एक साइंस है, इसके लिए ये ज़रूरी है। आयुर्वेद हम देखते हैं कि एक अल्टरनेट मेडिसिन करके सरकारी स्तर पर शुरुआत हुई थी, एंड ये आयुर्वेद के साथ साथ नेचुरोपैथी है, योगा है, सिद्धा, यूनानी, इन सब को होम्योपैथी एक अल्टरनेट मेडिसिन के तरह इनको प्रमोट करने का एक प्रयास किया जा रहा था। एलियोपैथी के तरीके से तो हम अगर देखें तो आयुर्वेद में विशेषतः हमारा एक होलिस्टिक हेल्थ के प्रति ज़्यादा ध्यान होता है, और किसी भी शारीरिक व्याधि को मानसिक स्तर पर उसको ट्रेस करके और दोनों स्तर पर उसको किस तरीके से हम इसका इलाज कर पाए, इसके लिए प्रयासरत हमारी ये पैथी रहती है। और आज मुझे लगता है ये समय आ गया है कि इसको अल्टरनेट मेडिसिन ना कहा जाए, तो इसको एक मेन स्ट्रीम मेडिसिन की तरह इसको हम प्रमोट करें, आगे बढ़ाएं। जब हम इसको मेन स्ट्रीम मेडिसिन की तरफ लेके जाना चाहते हैं, मुझे लगता है विशेषतः आयुर्वेद की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, बाकी सारी पैथीज में या स्पेशली एलियोपैथी में बीमारी का इलाज होता है, पर मुझे लगता है कि आयुर्वेद में एक जो बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है वो यह है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, एक निरोगी व्यक्ति का स्वास्थ्य, उसका रक्षण भी कैसे किया जाए और उस स्वास्थ्य को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए ये पैथी प्रयासरत रहती है, जिसके लिए दिनचर्या, ऋतुचर्या, ऐसी कई सारी चीज़ें हम इसमें रखते हैं और इस पर ध्यान दिया जाता है। और इसी को मैं एक तरीके से होलिस्टिक हेल्थ कहना चाहूँगा, जो हमारे इन पैथीज में विशेषता आयुर्वेद में होता है। चाहिए गहरी लंबी सांस लीजिए, सब लीजिए। एक बार पुनः एक बार पुनः आयुर्योग एक्सपो में आज के माननीय मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, संगठक, कुशल वक्ता, योग्य प्रशासक, दिव्य प्रेम सेवा मिशन के माननीय संरक्षक आदरणीय ब्रजेश जी, आपके चेयरमैन श्रीमान राकेश शर्मा जी, योग गुरु, विश्वविख्यात साइंटिस्ट, योग और आयुर्वेद के संदर्भ में ऐसे डॉक्टर नागेन जी, डॉक्टर चौहान जी, आदरणीय तोमर जी और श्रीमान संदीप कदम जी, डॉक्टर नितिन अग्रवाल जी सहित और डॉक्टर गंगाधर जी सहित आप सबको विनम्रता से प्रणाम, और सामने बैठे देश भर के डेलीगेट्स को शुभकामनाएं। भारत के आध्यात्मिक आकाश में आप भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं तो पतंजलि का लेते हैं, तो आप बुद्ध का लेते हैं, आप महावीर का लेते हैं, आप शंकराचार्य जी का लेते हैं। ये सभी महानतम योग और आयुर्वेद के आचार्य थे, सभी श्रेष्ठतम थे, दिव्यतम थे। और चूंकि एक शब्द मिलता है ऋषियों मंत्र दृष्टारः, इन लोगों ने मंत्र अवतरित हुए देखे। अब इस मंत्र का इस अवस्था में, इस व्यवस्था में, इस आसन में, इस परिस्थिति में इतने बार आवर्तन करने से प्रकृति में, पर्यावरण में, शरीर में, मन में, बुद्धि में ये परिणाम आएगा, ये
अनुसंधान करके लिख कर चले गए हमारे आपके लिए। उस अनुसंधान को जानना, मानना, समझना आज की स्थिति और परिस्थिति में ये हमारा आयुर्योग समझा रहा है। आज की परिस्थिति, जैसा कि अभी हमारे हिमाचल से आए आदरणीय सेक्रेटरी जी ने कही बात, एक बात बहुत अच्छी लगी आपने, अल्टरनेटिव इसको मत कहिए, मूल है। जैसे भी 2 साल पहले भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी बद्रीनाथ गए थे, चाइना की सीमा पर आखिरी गांव है माना के गांव में खड़े होकर उन्होंने कहा, इसको अंतिम गांव मत कहिए, ये हमारा भारत का प्रथम गांव है, प्रथम, इसलिए इसको अल्टरनेटिव मत कहिए भैया, यही हमारा मूल है। क्योंकि गौतम बुद्ध की बात करते हैं तो उन्होंने अष्टांग दर्शन दिया है, पतंजलि की बात करते तो उन्होंने भी अष्टांग दिया, इसलिए इसमें कहीं भेद विभेद नहीं है। मैं वो लंबा नहीं जाऊंगा, बस यही समाप्त करता हूं बात की जो ऋषियों ने हमको दे दिया है उसी को जानना, मानना, समझना, और भारतीय जो कालजयी ज्ञान परंपरा है उस सत्य के अनुसंधान के लिए कहते हैं शास्त्र हमारे कि 10 लाख वर्ष सहज लगता है, सहज स्वाभाविक अनुसंधान को पूर्ण करने के बिना किसी रुकावट के। जैसे माँ गंगा जी गंगोत्री से चलती हैं, कलकत्ता के पास में गंगा सागर में विलीन होती हैं, मान लीजिए कि 1 महीने की जीवन यात्रा उनकी है। अब उस 1 महीने में हम सब जाते हैं, गंगा जल लेते, हरिद्वार में गए, 1 लोटा जल अपने पूजा घर में रख लिया, आखिर जल रुक गया ना वो, अर्थात बिना रुके सतत शाश्वत गति से चलने के बाद 10 लाख वर्ष लगता है। लेकिन भारतीय योग परंपरा, आयुर्वेद की परंपरा इसको घटा करके इसी शरीर में, इसी जीवन में पूर्ण किया जा सकता है कुछ वर्षों में। अर्थात योग और आयुर्वेद योग मार्ग नहीं, वायु मार्ग कह सकते हैं उस सत्य के अनुसंधान के लिए। इसलिए ये जो नया प्रयोग शुरू किया है डॉक्टर राकेश जी ने, डॉक्टर नितिन जी ने, दोनों को मैं सराहना करता हूं और पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूं कि इस कार्य में सतत शाश्वत रूप से हम सब जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं सबको। जय विवेकानंद सूरये सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे मेरे आत्मीय भाई और बहनों, ये सुंदर वातावरण में आयुर्योग का जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आजकल दुनिया भर द NCDs नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस ज़्यादा बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियल प्रोपोर्शंस हो रहा है। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, एपिलेप्सी, माइग्रेन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कैंसर, सब। और मॉडर्न मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन से उसका कुछ इलाज नहीं है, मतलब देयर इज नो क्यूर टू दिस एलिमेंट्स। Once you have hypertension, ever hypertension. Once you get diabetic, it's for life. Once you have cancer, your days are numbered, have come to pass. Why? In spite of all the wonderful achievements that modern medical system has developed, we have put such powerful pharmacological interventions and 5,000 types of surgeries, all that we have done, but no solution to this. Why? There is a fundamental reason for that. That is, the entire allopathic system or the modern medicine or modern science is based only on physical world. It's a matter-based paradigm. Everything is nothing but matter, we think, and everything is only the body, the physical thing. But according to our ancient shastras, yoga, ayurveda, siddha, vinaya, all this, our systems, we know that we are not just the physical body, we have got the prana, the mind, the emotions, intellect, and consciousness at the base of being. And described in Panchakoshas, Annamaya, Pranamaya, Manomaya, Vijnana, Anandamaya Koshas, and all these NCDs start in the
Manomaya kosha as Adhi comes down to the body as Vyadhi. Unless we remove the Adhi, we have no solution. Whether it is yoga or Ayurveda, we work at all these dimensions. We not only work at the physical level, but mostly the mind level. It's a lifestyle change that we had to bring. आजकल क्या हो रहा है हम देखते हैं कि सब हमारा लाइफस्टाइल बदल गया है. All these physical things, we are doing that. We have to bring about the change in the mind level. This is where yoga comes into picture. Yoga chitta vritti nirodha. Getting control and mastery over the mind is yoga. Similarly, Ayurveda works at the three doshas and see how best we can change our entire lifestyle. And it is this emphasis we have to do. But at the same time, we have to bring all these things with evidence base. We have to bring research dimension. For the last 40 years, we have been working on yoga research, and we have published nearly 40,000 research papers to show how yoga is not just a mumbo jumbo, but it has got an evidence base. Similarly, Ayurveda also has started doing research, more and more research, and we have to publish papers in Ayurveda in the best journals like Nature, Lancet, NEJM, and BMJ, and many other things. If we can bring, then Ayurveda also will hit the headlines. Therefore, in our university, we have got the Ayurveda College, and we have very strong research team who have started working on this dimension to show that Ayurvedic medicines could be equally effective and more effective with no side effect. And we have started working on this Ayurvedic medical system to develop the research. And our goal is the next 3 to 5 years, we should be able to have this Ayurvedic medical thing should come up and get accepted throughout the world. It should happen. It can happen only when we publish papers in the best of the journals of the world. And that's the direction that we are taking. And all the experts who have come here, and the research scholars and professors and others who have come, should see that we go in this direction to see that we have the best of the research that is produced. And I see many of our students, whether it's in BIMS or it's in BNYS or in the yoga field, they are very, very brilliant, very creative, very intelligent, and they have such wonderful dimensions. And using their innovation, creativity, we have to develop such methods by which we will be able to bring about this thing in the best journals. But our knowledge is vast, whether it's a Charaka or Sushruta or Vagbhata or the 18 Shastras in Ayurveda. Apart from that yoga, we have all the amount of ocean of knowledge. And we have to go deeper and deeper into unearth the secrets that are available to make this possible. And therefore, it is time that we should study our Shastras in greater and greater depth one side and use the best of the scientific methods to prove its efficacy and see that it goes to the highest level of publications. And this is the way ahead for us. And let this beautiful Ayurveda conference will bring about some of these dimensions to see that we get a direction to work in the research and to make yoga, Ayurveda, and Ayush system to become a very effective dimension. We need an integrative medicine. It doesn't mean that we are going to throw away Western medicine or allopathy, but we should have the allopathy also. At the same time, we have to add on the dimension. Therefore, we are all proceeding to bring integrative medicine. As Dr. Gangadhar has been promoting this dimension, integrative medicine, we started certificate course in integrative medicine with Nimhans, and it's a wonderful thing that large number of doctors have started taking to this thing, opening their minds. Allopathy people should get opening of the minds by unlearning Ayush. Similarly, Ayush system people should learn the grandeur of allopathic system and the research dimension. Both should happen. This is what we have started. And similarly, we are Nimhans have pioneered in bringing MD in integrative medicine in the mental health. Recently, Ayush, we have got उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकसित जनपद
गौतम बुद्ध नगर के बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान एक्सपो मार्ट में आयोजित इस आयुर्योग एक्सपो के उद्घाटन सत्र की समय मंच पर मेरे साथ उपस्थित जिनके नाम से आयुर्वेद की पहचान है, जिनको पूरा आयुर्वेद जगत सम्मान की दृष्टि से देखता है। समूचे भारतवर्ष में जब आयुर्वेद की चर्चा होती है, उनके नाम के सामने सम्मान अपने आप से जुड़ जाता है। और ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे आज स्वयं में उस मनीषी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे मेरे साथ मंच पर उपस्थित पद्मश्री गुरु डॉक्टर HR नागेंद्र जी, मंच पर उपस्थित मेरे निजी जीवन के संरक्षक, मेरे सामाजिक जीवन के संरक्षक, मेरे राजनीतिक जीवन के संरक्षक, दिव्य प्रेम सेवा मिशन के संस्थापक अध्यक्ष श्रद्धेय आशीष भैया, एक्सपो मार्ट के चेयरमैन भाई राकेश जी, नेशनल मेडिकल कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर BN गंगाधर जी, हिमाचल सरकार में आयुष के सचिव संदीप कदम जी, IMA आयुष के फाउंडर डॉक्टर RS चौहान जी, विश्व आयुर्वेद मिशन के फाउंडर डॉक्टर GS तोमर जी, और जिनके कारण मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसे मेरे मित्र, मेरे भाई, ब्लिस आयुर्वेदा के संस्थापक, इस फेयर प्रेसिडेंट, इस आयुर्योग एक्सपो के प्रेसिडेंट डॉक्टर नितिन अग्रवाल जी, मेरे संगठन के जिला अध्यक्ष भाई गजेंद्र मावी जी, CP शर्मा जी, और मेरे पिता के सहपाठी रहे, मेरे पिता तुल्य गुरुकुल आयुर्वेद कॉलेज के ग्रेजुएट, बहुत लंबे समय तक उत्तर प्रदेश आयुर्वेद चिकित्सा सेवा संघ के अध्यक्ष रहे आदरणीय डॉक्टर अशोक वर्मा जी, इस सभागार में उपस्थित आयुर्वेद के सभी मनीषी विद्वज्जन, अनेकों आयुर्वेद औषधियों के निर्मातागण और उपस्थित पत्रकार बंधु। अभी हिमाचल प्रदेश के आयुष सचिव ने कहा कि संभवतः मैं और मंत्री जी हम 2 लोग हैं जिनका आयुर्वेद से कोई नाता नहीं है। उनका ये कहना स्वाभाविक था क्योंकि मेरे नाम के सामने डॉक्टर नहीं लगा हुआ, और उनके और मेरे नाम को छोड़ के यहाँ मंचस्थ जितने लोग हैं सबके नाम के सामने डॉक्टर लगा हुआ। लेकिन मेरे लिए ये गर्व की बात है, मैं इसे अपने आप, मेरा ये अपना सौभाग्य मैं मानता हूं कि मैं एक वैद्य का पुत्र हूं, एक आयुर्वेदाचार्य का मैं पुत्र हूं, और मैं स्वयं में आयुर्वेद का छात्र। मैं डॉक्टर अपने नाम के सामने इसलिए नहीं लगाता क्योंकि मैं आयुर्वेद शास्त्री करने के बाद जो उसकी प्रैक्टिकल जितनी वो थी वो मैंने की नहीं। मैं सामाजिक जीवन में आ गया, और डॉक्टर समझ के कोई मुझसे पूछे कि इसका इलाज क्या है, मैं उसको उचित माध्यम ना बता पाऊं तो ये उस विधि के साथ न्याय नहीं होगा। इसलिए मैं अपने सामने आयुर्वेद का, लेकिन मेरे परिवार में आयुर्वेद है। मेरा जन्म आयुर्वेद की यूनिवर्सिटी में हुआ, जहाँ मेरा लालन पालन गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय परिसर में हुआ। मेरे पिता गुरुकुल आयुर्वेद महाविद्यालय के छात्र रहे लगातार लंबे समय तक। जिन्होंने गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी का नाम आयुर्वेद जगत में सुना होगा, उन्होंने लगातार कई वर्षों तक उसमें सेवाएं दी। मैं आयुर्वेद को बहुत नजदीक से जानता हूँ, और आयुर्वेद विश्व की एक प्राचीनतम पद्धति है, विश्व की एक प्राचीनतम विधा है। और अभी मैं जब कई लोग बोल रहे थे अल्टरनेटिव मेडिसिन पे और एक मेडिसिन पे, तो मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ, और मुझे इस बात का भी गर्व महसूस होता है कि मेरे पिता आयुर्वेद के आयुर्वेदाचार्य, उन्होंने गुरुकुल से किया और लगातार लंबे समय तक उन्होंने प्रैक्टिस की, और उन्होंने पूरे जीवन काल के अंदर एक भी एलोपैथी प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखी, और आज भी लिखते हैं तो आयुर्वेद की प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं। तो मेरे लिए ये बड़ा गर्वान्वित करने वाला विषय है। लेकिन जब हम अल्टरनेटिव मेडिसिन में आयुर्वेद की बात करते हैं तो मेरा एलोपैथी वालों से एक ही सवाल होता है, सीधा प्रश्न होता है, और वो बड़ा यक्ष प्रश्न है। आज तक कोई एलोपैथी वाला उसका जवाब नहीं दे पाया। हम लोग रामचरितमानस को पढ़ते हैं, और आयुर्वेद वेदों से आया हुआ ग्रंथ है। और आयुर्योग, जब आयुर्वेद की बात करते हैं तो जब आयुर्वेद में आते हैं तो हम अपने
7 चक्रों की बात करते हैं, पंच महाभूतों की बात करते हैं, 3 दोषों की बात करते हैं, वात पित्त कफ, हम लोग सप्त धातु की बात करते हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। और जब हम इनको बात करने के बाद जब हम बात करते हैं एलोपैथी और आयुर्वेद के कंपैरिजन की, तो मेरा एक ही सवाल होता है, क्या एलोपैथी में संजीवनी बूटी है? क्या एलोपैथी में संजीवनी बूटी नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में संजीवनी बूटी है। आयुर्वेद में संजीवनी बूटी थी, और उसी आयुर्वेद की संजीवनी बूटी के कारण जब मैं सतयुग में जाता हूं, भगवान राम का दर्शन करता हूं, भगवान भाव विभल होते हैं, और उस रामचरितमानस में आयुर्वेद का प्रवेश होता है। और जब उस रामचरितमानस में हम आयुर्वेद को जब हम देखते हैं, और जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अति प्रिय अनुज लक्ष्मणपुरी के राजा लखनलाल को मेघनाथ मूर्छित करता है और भाव विभल हो जाते हैं, और युद्ध की भूमि में रहते हैं, तो वहां पर तो कोई वैद्य भी नहीं था। और जब वैद्य विभीषण सलाह देते हैं, तो वैद्य सुषेण की चर्चा आती है। जब वैद्य सुषेण की चर्चा आती है, तो राजधर्म और एक चिकित्सक का क्या धर्म होना चाहिए, राजधर्म और एक चिकित्सक, उसमें भी एक आयुर्वेद वैद्य की क्या भूमिका होनी चाहिए, वो एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। और जब उस प्रसंग की बात करते हैं, तो जब हनुमान जी को भेजते हैं सुषेण के पास, तब वैद्य सुषेण को लंका के उससे बुलाया जाता है, तो सुषेण वैद्य भगवान राम से प्रश्न करते हैं कि मैं वैद्य दशानन के घर का, चूंकि राजाज्ञा तो वो दुश्मन की सेना में है, राजधर्म तो ये अलाउ नहीं करेगा कि वैद्य सुषेण भगवान राम के अनुज का इलाज करे, लेकिन एक राजधर्म है और एक चिकित्सक का धर्म है। और किसी भी संस्कृति, किसी देश की संस्कृति के अंदर इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं मिल सकता। वह प्रश्न कर देते हैं भगवान से, मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं? अनुचित होगा लंकापति को, लक्ष्मण को यदि आराम करूं। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है वह कैसे कर्म किया जाए? हे राम तुम आज्ञा देते हो, क्या इस समय अधर्म किया जाए? तो भगवान राम से प्रश्न कर रहे हैं, वैद्य सुषेण भगवान राम से प्रश्न कर रहे हैं। भगवान राम का उत्तर सुनिए, जिस धर्म पर अपना राज्य गया, भगवान राम ने तो पिता का वचन निभाने के लिए राज्य त्याग दिया था। जिस धर्म पर अपना राज्य गया, जिस धर्म पर पितृदेव का मरण हुआ, सीता प्यारी का हरण हुआ, उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए, आवाज यही होगी, धर्म नहीं जाने पाए। फिर भगवान राम ने उनको राजधर्म की याद दिलाई, लेकिन वैद्य सुषेण एक वैद्य थे, एक मरणासन व्यक्ति का जीवन को जीवनदान देना ही एक चिकित्सक के लिए सबसे बड़ी उसका धर्म होता है। फिर वैद्य कहते हैं, नाथ धर्म चर्चा की थी केवल इस समय परीक्षा को, अन्यथा दास तो आया है केवल स्वामी की सेवा को। यानी कि फिर वैद्य सुषेण ने अपना चिकित्सकीय धर्म निभाया, अपने वैद्य के धर्म को निभाया, संजीवनी बूटी आई, लखनलाल जीवित हुए, और फिर भगवान ने के साथ उन्होंने लंका पर चढ़ाई की। और जब हम ऐसे अनेकों भंडार हैं, और आयुर्वेद में तो कहा गया है, स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य विकार प्रश्नम च। आयुर्वेद का जो शाब्दिक अर्थ है वो जीवन का विज्ञान है। इसका उद्देश्य है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और जितने हमारे अंदर विकार हैं उनको निवारण करना, ये इसका सार है। मैं आयुर्वेद का छात्र रहा हूं, आयुर्वेद का ज्ञाता नहीं हूं। मैं आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माता रहा हूं, लेकिन मैं आयुर्वेद का ज्ञाता नहीं हूं, और मेरा ये परम सौभाग्य है। मुझे आज इस मंच पर बुलाने का सौभाग्य है, मुझे इस मंच पर पूज्य गुरु जी के सामने इन सब विचारों को रखने का सौभाग्य है, अनेकों मनुष्यों के सामने इन विचारों को रखने का सौभाग्य यदि मिला, डॉक्टर नितिन अग्रवाल के माध्यम से मिला। डॉक्टर नितिन अग्रवाल ऋषिकुल के ग्रेजुएट हैं, मेरे पिता गुरुकुल के ग्रेजुएट हैं, और गुरुकुल और ऋषिकुल में एक लंबा संघर्ष चलता था, कौन हम में महान है। लेकिन मेरा ये मानना है, यदि आप अपने जीवन में आयुर्वेदाचार्य बन करके, योग के आचार्य बन करके, आयुर्वेद और योग का समन्वय स्थापित करके हम अनेकों लोगों की जान बचा पाए। और अभी चर्चा की थी कोरोना की, पूरे विश्व के अंदर, पूरे चराचर जगत के अंदर, जहां कोरोना के जब प्रबंधन की बात करते हैं, तो कोरोना का प्रबंधन मेरे देश के प्रधानमंत्री से पूरे विश्व को सीखना चाहिए। कोरोना का प्रबंधन
मेरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से विश्व को सीखना चाहिए। और उस कोरोना प्रबंधन में जब सारी एलोपैथी निराधार हो गई थी, जब लोग समझ नहीं पा रहे थे कि हम कैसे लोगों को बचाएंगे, इस आयुर्वेद जगत के लोग आगे आए। उन्होंने आयुर्वेद में सिर्फ जो बहुत सिंपल काढ़ा है, जो क्वाथ है, उनकी क्वाथ को जन्मजात किया, इजाद किया और कहा कुछ मत करिए, केवल ये क्वाथ पीजिए, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और आप कोरोना जैसी बीमारी को मात देंगे। और सैकड़ों करोड़ों लोग भारत के अंदर उस कोरोना के काल में आयुर्वेद की विधा को अपनाकर, आयुर्वेद की औषधियों को अपनाकर अपने जीवन को बचा पाए। इसलिए पूरे विश्व के अंदर जब मृत्यु दर का आंकड़ा कोरोना के अंदर निकाला जाता है तो हमें अपने देश के प्रधानमंत्री पर गर्व होता है कि भारत का सबसे कम आंकड़ा है। और जब देश के अंदर बात होती है तो मुझे अपने मुख्यमंत्री पर गर्व है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे कम आंकड़े मृत्यु दर के थे। ऐसी इस विधा को आज आप सबके बीच में आकर के ये मेरा सौभाग्य है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से यहाँ के सभी आयोजकों को बहुत बहुत बधाई अपने मुख्यमंत्री जी की ओर से देता हूँ। और जब मैं सरकार के प्रयासों की बात करता हूँ तो आज पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग आयुष ग्राम योजना में काम कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर के माध्यम से प्रत्येक जनपद के अंदर हम काम कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ा आयुर्वेद विश्वविद्यालय हम लोग गोरखपुर में स्थापित कर रहे हैं। मेरा ये मानना है इन सब संस्थानों के माध्यम से हम अपनी आने वाली पीढ़ी को अपनी प्राचीनतम पद्धति जो विश्व की चिकित्सकीय पद्धति में है, जब लोग सर्जरी करना नहीं जानते थे, तब आचार्य सुश्रुत ने चारपाई पर लेटा करके मानव के शरीर की सर्जरी कर दी थी। ये वो विधा है जिस विधा में महर्षि चरक ने जन्म लिया। ये वो विधा है जिसमें महर्षि पाणिनि ने जन्म लिया। ये वो विधा है जिसमें महर्षि पातंजलि ने जन्म लिया। ये वो विधा है जिसको अपनाया स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने। ये वो विधा है जिसको अपनाया स्वामी विवेकानंद ने। और इन सब ऋषि मनीषियों की तपश्चर्या का परिणाम है कि आज भारत वो देश है जहां पर आयुर्वेद को सम्मान और पूजा के भाव से देखा जाता है। ऐसे भारतवंशियों के इस देश में अपनी इस प्राचीनतम विधा के समस्त मनुष्यों के श्री चरणों में मेरे सामने बैठे आयुर्वेद के समस्त ऋषि मुनियों की परंपरा का निर्वहन कर अपने इस चराचर जगत में इस पैथी को आगे बढ़ाने का काम करते हुए इस आयुर्वेदिक औषधियों में निर्माताओं के माध्यम से आयुर्वेद औषधियों को पूरे देश के अंदर उपलब्ध कराने वाले समस्त आयुर्वेद के जितने भी यहाँ पर जिज्ञासु बंधु हैं, उन सब के श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। माननीय मंत्री जी के उत्साहवर्धक शब्दों के लिए हम उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं और अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित